Namaskar dosto, I am Rajesh Agarwal, advocate on record, and today we are going to have very interesting talk with an interesting person who is very soft and loving and pleasurable to meet person, and he is my friend Mr. Shyam Sharma. श्याम जी, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में. Thank you sir for such kind words. I must tell some background of Shyam Sharma. He is a sports person and a lawyer by profession. He is one of the senior member executive in Delhi High Court Bar Association. But on sports side, he breathe cricket, he talk cricket. Cricket is in his blood, and he is presently holding the post of director in DDCA, that is Delhi District Cricket Association. He is also a vice president in Indian Olympics Association. As a member and director of DDCA, he has had an occasion to work and deal with great personalities in the cricket field. तो मैं आपसे श्याम जी ये जानना चाहता हूँ कि how that in this tough field of profession of law that you manage to grow your interest in cricket and doing all these responsibilities. Sir, I have started playing cricket in 85 until 1991. I was playing cricket in Delhi. Cricket was a passion for me and still a passion. So while I was doing law, I started working with Mr. Chindyok, and I saw him managing things, everything. He was on like 24-hour lawyer, senior advocate, doing all briefs, studying till late nights, and then attending all social functions also and doing charity also. So I learned few of those tricks of the trade, basically how to do the time management. So when I'm a lawyer, I devote my time 100% to my profession, and after that, whenever I get a time on Sunday, I enjoy my cricket also and I do my duties. But as a director of DDCA, is it not a full-time profession, a job which you have to perform, because there must be many responsibility because of that? There are a lot of responsibilities, but it's not a full-time. Basically, we have different staffs. लीग कमेटी हमारी अलग से है जो 1500 मैचेस कराती है, उसमें 10-12 लोग हमारे अपॉइंटेड रहते हैं. डायरेक्टर्स हैं, बहुत से डायरेक्टर तो हमारे आते भी नहीं DDCA में, काम ही नहीं करते. तो हमारे जो प्रेसिडेंट है रोहन जेटली, ही इज़ डिवोटिंग मच टाइम देयर एंड ही इज़ इंस्पायरिंग द अदर्स टू वर्क हार्ड ऑल्सो. दिल्ली की क्रिकेट का बहुत बुरा हाल था स्टेडियम का जब वो प्रेसिडेंट बने थे, और इस बार हमें जो 50-60 करोड़ रुपए जो हमने लगाया है DDCA पे, सारी सीट्स चेंज कर दी हैं हमने, सारे टॉयलेट्स 58 नए बना दिए हैं, सारी पिचेस नई बना दी है. तो जितना प्रेज मिला है उसमें बेसिकली कंट्रीब्यूशन मिस्टर जेटली का था. उनके साथ साथ हम भी लगे रहते हैं. मतलब आप शाम को यहाँ काम करो, शाम से और जाकर 6 से 9 बजे तक भी अगर हमने टाइम डिवोट किया 3 घंटे भी वहाँ, तो कोर्ट का टाइम उसमें खराब नहीं हुआ और DDCA का अलग से होता है. नहीं, बट मैंने देखा है कि आप तो सारे जितने भी वर्ल्ड कप मैचेस हैं या दूसरे भी मैचेस होते हैं, तो आई हैपन टू सी यू इन द वॉच टीवी एंड यू आर स्टैंडिंग देयर ऑन द पिच और इन द पेविलियन, VIP पेविलियन विद दो स्टार्स समथिंग, एंड यू हैव one-to-one रिलेशनशिप विद मेनी क्रिकेट पर्सनैलिटीज. तो इनसे आप जो है क्या मतलब how do you manage all this? Fortunately, I got a chance to be the manager of Indian cricket team against Australia in this year only, February. So I had the chance to meet all players also, though I know few of them earlier also, and I had a great relationship with old players also like Sehwag, Gambhir, Dravid, Ganguly, all were like family to me. ठीक है, टाइम हो जाता है मैनेज सर, ऐसा बोलते हैं टाइम मैनेज. घर का काम भी तो हम करते ही हैं ना. जब हम यहाँ से जाते हैं घर पे तो सब्जी लेने वहीं जाना पड़ता है ना, चाहे फ्राइडे मार्केट हो चाहे किसी और मार्केट जाना हो. तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में क्या काम रहता है आपका? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में इट्स लाइक ऑर्नामेंटल पोस्ट फॉर मी बेसिकली. तो वहाँ जो प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन. ओके. तो दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन में जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि वी वांट योर कंट्रीब्यूशन फॉर द एग्रीमेंट्स, जॉइंट वेंचर्स एंड अदर थिंग्स आल्सो एंड फॉर स्पॉन्सरशिप. सो इस हिसाब से मैं उनके साथ जुड़ गया क्योंकि मेरा हर स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट है. और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं मुनि का गाँव से था, हमारे मुनि का गाँव में स्विमर्स थे, सारे इंटरनेशनल स्विमर्स में से 80% हमारे गाँव से आते थे. अभी भी जितने लड़के हैं लड़कियां हैं, मतलब जूडो है,
कराटे हैं, बॉक्सिंग है, उसमें मुन्नी का काम करना बहुत अच्छा है। तो हमेशा से एक स्पोर्ट्समैन का वो रहा कि इनका प्रमोशन होना चाहिए, इनको क्या 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 डिफ़िकल्टी होती हैं। और फिर जो कमियां हमने क्रिकेट में देखी थी कि डिस्टेंस अलग होता था, पिचेस ख़राब होती थी, बॉल्स नहीं थी, जूते नहीं थे, कपड़े नहीं थे बच्चों के पास, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि वो सारी कमियां हम ख़त्म करके क्रिकेट और बाकी जितने स्पोर्ट्स हैं उनका प्रमोशन करें। और उनके प्रमोशन के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन जो रहता है मैं देता हूँ उसमें, इसलिए वहाँ पे मैं ये स्ट्रक्चर समझना चाहता हूँ, क्या मतलब DDCA है, ऐसे स्टेट में और भी होते होंगे क्रिकेट एसोसिएशन, फिर उसके ऊपर BCCI है। अभी DDCA का आपने बताया रोहन जेटली जी है, पहले उससे पहले उनके फादर होते थे अरुण जेटली जी, उससे पहले रजत शर्मा भी बीच में रहे हैं। देन अभी BCCI में जो है रोजर बिन्नी साहब हैं जी। और BCCI हमारी हेड बॉडी है, ICC सबसे बड़ी बॉडी है जो पूरे सारी दुनिया के क्रिकेट को कंट्रोल करती है। और ICC के अंडर में सारी स्टेट्स की, सारी कंट्रीज की क्रिकेट एसोसिएशन है। और अपने स्टेट की जैसे हमारी BCCI है इंडिया की क्रिकेट एसोसिएशन, तो वो सारे स्टेट एसोसिएशन के ऊपर है। सारे स्टेट एसोसिएशन को जो फंड्स मिलते हैं, जो गाइडेंस मिलती है, वो सारी BCCI से आती है। फंड्स एलोकेट होते हैं, BCCI कीपिंग आई ऑन एवरीथिंग। सो इट्स द जॉब ऑफ द BCCI टू प्रमोट क्रिकेट and to assist financially and in other manners also all state associations. So therefore district association are being funded and audited by BCCI. BCCI. Is there any politics involved in the selection of the people, sports people? अपने टीम में जब आप किसी को, how do you select? देखो हमारे दिल्ली का सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जब रोहन जेटली जी ने इसको टेक ओवर किया था जब प्रेसिडेंट, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनसिक्योरिटी थी सारे पेरेंट्स में, बच्चों में भी। सब ये सोचते थे कि पैसा खिलाओगे तो आप मैच खेलोगे, पैसे के बगैर दिल्ली में सिलेक्शन नहीं होगा, ये परसेप्शन था। और अच्छे अच्छे प्लेयर्स यहाँ से छोड़ के जा रहे थे। 2013 तक अरुण जेटली जी थे, तब तक आप देखिए कितने अच्छे अच्छे प्लेयर दिल्ली ने दिए। 99 से 2013 तक वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, आशीष नेहरा, आकाश चोपड़ा, ऋषभ पंत, विराट कोहली, सारे ये बच्चे, शिखर धवन, उसके बाद अमित भंडारी, ये सारी पोज जब निकली है, जब अरुण जेटली जी का टाइम था, फेयर सिलेक्शन होता था। 2013 से लेकर और 2019 तक 6-7 साल में बहुत दिल्ली का क्रिकेट का स्तर गिर गया था, बहुत करप्शन बढ़ गया था। जो पैसा डेवलपमेंट पे जाना था, टैलेंट को नर्चर करने के लिए जाना था, वो पैसा लॉयर्स की फीस में चला गया था। एक साल में 8-8 करोड़ रुपए फीस गई है लॉयर्स को। आपस में लिटिगेशन डालते, आपके खिलाफ मैं डाल रहा हूँ, आप मेरे खिलाफ डाल रहे हैं, दोनों सीनियर एडवोकेट कर रहे हैं, दोनों की फीस DD से दे रहा है। लड़ाई हमारी पर्सनल होती थी, फीस DD से देता था। उस सब को कंट्रोल किया गया, सिलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करने की पूरी कोशिश की गई है। देखो अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, पर ऐसा हो गया है कि अभी सिक्योर है पेरेंट्स कि हाँ जी मेरे बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो खेलेगा। मकसद ये है कि जैसे जायसवाल है रेडी पे समोसे बेचता था तो आ गया है, रिंकू सिंह है गैस सिलेंडर कर रहा था तो भी आ गया है। तो ऐसे टैलेंट को दिल्ली में भी लेके आना है कि उसे फाइनेंशियली मजबूत जरूरी नहीं है, टैलेंट होना चाहिए। तो उसके लिए काम किया जा रहा है। पहले बच्चों को स्कोर कार्ड भी नहीं दिया जाता था, उसके पेरेंट्स को। सबकी शिकायत होती थी मेरे बच्चे ने 100 रन बनाए हैं, किसी की शिकायत होती थी कि मेरा बच्चा गलत आउट दे दिया, किसी की शिकायत होती है गिल्ली पिच पे खिला दिया है या बाउंड्री छोटी कर दी है। उन सब का सोल्यूशन निकाल दिया है अरुण जेटली ने कि लाइव टेलीकास्ट कर दिया। तो हर एक पेरेंट सिक्योर है कि देखो जी पता चल गया कि आपका बच्चे ने कैसा खेला है और कैसे परफॉर्म किया है, और सबका रिकॉर्ड सबके पास है। तो आप बगैर जब तक परफॉर्म नहीं करोगे आप टीम में नहीं आओगे। कोशिश भी अच्छी है और सिलेक्शन में काफ़ी हद तक कोशिश करने की आगे होगा। मेरिट्स तो रहता ही है। हाँ, अच्छा अब मेरिट्स पे कितना परसेंटेज, इफ आई आस्क यू कि हाउ मच परसेंटेज इज द फेयर सिलेक्शन ऑन मेरिट्स, तो कितना? देखो जी फेयर सिलेक्शन तो ये है कि 90% तो फेयर है ही है। मुझे लगता है कि 90% सिलेक्शन फेयर है। 10% में कुछ सिलेक्टर्स कर जाते हैं, कभी कुछ और कोई इन्फ्लुएंस करते हैं, कई पॉलिटिकल रीजन लोग होते हैं कर जाते हैं। उसको भी खत्म करेंगे आने वाले टाइम में आहिस्ता आहिस्ता करके। कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं DDC पे। अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स साइड में कुछ नेगेटिव इम्प्रेशन आए, जैसे वहाँ पर उन्होंने बॉक्सर्स ने अपना कर दिया था, प्रोटेस्ट कर दिया था जंतर मंतर पे, और ये सारी बातें आई थी, और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के एलिगेशन थे। तो व्हाट आई एम आस्किंग नॉट अबाउट दैट, बट आई एम सेइंग कि व्हाट इज द नेगेटिव साइड इन दिस स्पोर्ट्स फील्ड? देखो सर आप तो जज भी रहे हैं, लॉयर भी हैं, इतने सीनियर लॉयर हैं। अब जो धरने पे बैठे थे बच्चे वो पहले क्यों नहीं बोले? और उन्हीं की स्टेटमेंट थी कि दे आर लकी कि ऐसा आदमी हमारी एसोसिएशन को चला रहा है, कुश्ती एसोसिएशन को
चला रहा है, फिर एकदम से एलिगेशन आते हैं, स्पोर्ट्स आता है तो फिर एक ही फैमिली के लोग एलिगेशन लगाते हैं, तो उसकी तह में जाना बहुत ज़रूरी है कि क्या था कारण, क्या नहीं था कारण। किसी ने अच्छा सा ट्वीट किया था, मुझे अभी भी याद है, कि इनसे आप एफिडेविट ले लो कि ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, कहते ये उसी दिन उठ भाग के जाएंगे, एफिडेविट नहीं देंगे आपको, क्योंकि सबने इलेक्शन लड़ना है, पॉलिटिकल मोटिवेट है। सब ये चाह रहे थे कि जी आगे ट्रायल नहीं हो, बगैर ट्रायल के हम सीधे पहुंच जाएं खेलने के लिए। कई चीज़ें होती है सर, इसमें इतना आसान नहीं है काम जितना दिखता है, जो दिखाया जाता है वो। हमारे यहाँ तो ये है कि बस किसान का नाम आ जाए, पहलवान का नाम आ जाए, धर्म का नाम आ जाए, तो लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। मतलब उसमें कुछ विंडिक्टिवनेस या कोई मैलिस या वो सब बातें भी थी? सर नहीं होती तो कोर्ट एफआईआर क्यों करती, क्यों एक्सेप्ट करती? एफआईआर भी तो हुई है ना उसमें, तो कहीं ना कहीं कुछ होगा, कोर्ट का डिसीजन आएगा। वर्ल्ड कप अभी हुआ था जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, व्हाट यू से कि व्हाई इंडिया लॉस्ट? वन बैड डे, वन बैड डे। और कुछ चीज़ें क्या होती है, जो मौसम पे ना सर किसी का असर नहीं होता, तो वो जो ड्यू फैक्टर था, जितनी हमें उम्मीद थी वो नहीं रहा उस दिन। और वरना देखो, मैं अभी भी मानता हूँ कि हमारी टीम सबसे बेस्ट टीम थी पूरे टूर्नामेंट की, और बेस्ट अभी भी है। हमने किसी से मैच नहीं हारा था, ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हार के आई थी। हमने सबको बड़े अच्छे तरीके से, बुरी तरह से हराया था। हर आदमी ने अपना रोल अदा किया था। आप हीरो ढूंढने लगोगे तो हर 10 मैचों में अलग अलग हीरो थे, एक हीरो नहीं था, हर एक आदमी अलग अलग था। विराट कोहली ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, केएल राहुल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, रोहित शर्मा ने तो फैंटास्टिक कैप्टनशिप को इतना अच्छा किया, बुमराह था, शमी था, हर एक आदमी। सर बेंच स्ट्रेंथ पे बैठा हुआ ईशान किशन भी वेट कर रहा था, उसको मौका मिलता वो भी सेंचुरी मार देता। बट वन बैड डे, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि हम उसी पुराने विचारधारा पे चले कि हम कंसोलिडेट करते हैं इनिंग को 3 विकेट गिरने के बाद, और बाद में बना लेंगे, स्कोर कर लेंगे, और बाद में मौका ही नहीं आया क्योंकि हमारे 4थे विकेट भी गिर गई, 5वीं भी गिर गई, तो प्रेशर बनता गया। हमें कंसोलिडेट की सोचनी नहीं चाहिए। यंग ब्लड जैसे ऑस्ट्रेलिया खेलता है ऐसे खेलना चाहिए, 3 विकेट गिरने के बाद ही मारते जाओ, 5 गिर जाए, 6 गिर जाए, मारते रहो, फिर वो स्ट्रेटजी काम कर जाती है। वो स्ट्रेटजी हमारी काम नहीं की उसने। तो मतलब देयर वाज सम डिफेक्ट और सम रॉन्गनेस इन स्ट्रेटजी। सर जीत जाते, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम पहला मैच जीते थे, ऐसे ही खेल के विराट कोहली और केएल राहुल लेके गए थे इनिंग को, और हम बड़े खुश थे कि वो अच्छा खेले। जीत जाते तो हम कहते ठीक रहता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे पीएम साहब के पर्सनल प्रेजेंस के कारण घबरा गई हो तुम? नहीं, पीएम साहब तो घबराती नहीं टीम, पीएम साहब तो मोटिवेट करते हैं आपको, उनको देख के तो मुर्दा आदमी भी जिंदा हो जाता है। देखो मतलब देश की मरी हुई इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मैं तो कांग्रेस ही रहा हूँ सारी जिंदगी, और 2014 में मजबूरी में हमने मोदी जी को वोट दी थी कि इतने घोटाले चल रहे थे, और 2014 से लेके आज 23 आ गया, 10 साल हो गए हैं। उन्होंने हमें कभी मौका नहीं दिया कि वापस मुड़ के जाएं हम, बस मन यही करता है उन्हीं को वोट दें। And to add this, I compliment that he went to individually to them after the defeat and motivated each of them. बिल्कुल सर, ये मतलब एक बहुत बड़ी बात थी कि आप अपनी टीम जो मतलब रोए हैं लड़के उस दिन जो मेरे को मिले, मैं वहीं था, मुझे भी मुलाकात हुई, हम जो हमारे भी मन बड़ा खराब था, आंसू बस निकल ही रहे थे उस टाइम। आप देखो उनकी हालत, और उस टाइम जाके आपका देश का प्रधानमंत्री सबसे मजबूत आदमी कहे कि कोई बात नहीं बच्चा, अच्छा खेले, आगे चलो आप, तो एक मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वो इसरो में भी गए थे और वहाँ पे भी कंसोल किया था। हाँ बिल्कुल, मतलब दिस शोज हिज इन्वॉल्वमेंट। अब वो लोग याद नहीं करेंगे जो कहते हैं ना पनौती है, ये वही लोग हैं, अनपढ़, गंवार और बेवकूफ लोग जो पनौती कह रहे हैं, जो एक बार अनुष्का को भी कहते थे कि पनौती है, ये ऑस्ट्रेलिया आ जाती है विराट के साथ। मतलब किसी की फैमिली पे, अपने देश के प्रधानमंत्री पे आप कैसे वर्ष, जितना ये लोग ऐसे वर्ड यूज करेंगे उतना और बुरी तरह से हारेंगे। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिस इंटरप्रिटेशन, टोटल मिस इंटरप्रिटेशन है सर, टोटल। मतलब आप चलिए, आप कुछ कपिल देव के इरा के टाइम में कुछ बताएं मेरे को उनके बारे में। उस इरा में तो देखना शुरू किया था सर हमने मैच, मतलब 82 से स्टार्ट किया था जब पाकिस्तान गई थी टीम, तो वो तो लोग ऐसे लोग हैं, वो एक ऐसी टीम थी जिसने क्रिकेट को इंडिया में पॉपुलर बनाया। अगर वो 83 की विन नहीं होती तो इंडियन टीम अभी भी उसी हालात में होती। मुझे लग रहा है कि पैसा उसी टाइम के बाद से पैसा आना शुरू हुआ, वही टाइम है कि आज क्रिकेट हर एक स्पोर्ट्स को आगे फाइनेंस भी कर रहा है, उनकी हेल्प भी कर रहा है। आप कोविड के टाइम में देखिए 50 करोड़ रुपया दिया था बीसीसीआई ने, स्मॉल अमाउंट। शाहरुख खान के साथ आपका क्या प्रॉब्लम हुई थी? नहीं, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा दूसरा मैं बता रहा था, 83 में हर एक आदमी हीरो था। जब हम छोटे होते थे ना तो हमारे हीरो थे कपिल देव जी, और गावस्कर को आई यूज्ड टू डिसलाइक कि वो कपिल देव को
बाहर कर दिया, ये कर दिया। जब आप मुलाकात करते हो, इंटरेक्शन करते हो, तब आपको पता चलता है कि गावस्कर इज फैंटास्टिक पर्सन। कपिल और गावस्कर की बहुत अच्छी बनती है। तो ये मीडिया की रिपोर्टों को ना हमें ध्यान नहीं देना चाहिए कि रोहित की विराट की नहीं बन रही, उनकी उसकी नहीं बन रही। बहुत अच्छे दोस्त होते हैं अंदर। ड्रेसिंग रूम में माहौल देखा मैंने, ईशान किशन की जगह शुभमन गिल को खिलाया गया था और शुभमन गिल ने 200 स्कोर किया, तो ईशान किशन सबसे ज़्यादा जंप कर रहा था, बिकॉज दे बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स। और मीडिया पे वॉर चल रही थी। तो यही है सर। पब्लिक स्मोकिंग की बात मैं पूछ रहा था शाहरुख खान का, नहीं, उसके बारे में कुछ बताए। नहीं, वो 2000 You stopped him. हाँ, आई स्टॉप्ड इन 2010 का वो था। So he felt bad. या ही फेल्ट बैड। वो उनको लगता है कि वो सुपरस्टार है। अब लॉयर से ऊपर तो कोई सुपरस्टार होता नहीं, क्योंकि जब जहाँ फंस जाता है फिर हमने बचाना होता है। तो हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कौन सुपरस्टार है कौन नहीं है। बट अच्छा है, ठीक है, फैंटास्टिक एक्टर। No, but I must compliment you that you are sitting in a hall of fame there, and everybody didn't have a watch on everybody's conduct. और मैं ये भी बात पूछना चाहता कि आपके इसमें कोई एथिक्स कमेटी भी कुछ होती है, कुछ ओम्बड्समैन सिस्टम भी होता है, कोई क्या चीज़ होती है? ओम्बड्समैन है, हर स्टेट का ओम्बड्समैन है और बीसीसीआई की ओम्बड्समैन है। तो जो कंप्लेंट्स है, किसी को किसी के बारे में कोई शिकायत है या कोई कमी दिखाई देती है, ओम्बड्समैन को जाता है। और ओम्बड्समैन हमारे हाई कोर्ट रिटायर्ड जजेस हैं और बीसीसीआई के जो ओम्बड्समैन हैं वो सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जजेस हैं। तो वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल आर देयर और बड़ा everything is minutely monitored and scrutinized in cricket. So How the BCCI and DDCA they are taking the women cricket at par? सर इसमें तो जय शाह जी को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। जय शाह is nowadays secretary. हाँ, he is a secretary and he has the vision for the women cricket. मतलब वो ऐसे शख्स हैं जो शुरू women cricket को भी और फिजिकली चैलेंज क्रिकेट दोनों को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। विमेन क्रिकेट में मैन क्रिकेट की जो फीस थी उससे बहुत कम थी, उसको इक्वल कर दिया उन दोनों को। आईपीएल शुरू की तो डब्ल्यूपीएल भी शुरू कर दिए, तो उससे एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिसमें सारे पेरेंट्स अपनी बच्चों को भेज रहे हैं। 15 साल की बच्चियाँ, 16-17 साल की बच्चियाँ आईपीएल खेलने के लिए आएंगी, लाखों करोड़ों रुपए उनको मिलेंगे। तो एक बड़ा अच्छा करियर है ये। पहले कहते थे ना खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, तो वो कहावत गलत हो गई है। आज खेल भी एक करियर है आपका, आप खेलो अच्छे से, उसको करियर की तरह चलो तो बहुत अच्छे अंडर 16, अंडर 19, व्हाट आर द कैटेगरीज? अंडर 15 है, उसके बाद अंडर 19, अंडर 23, अंडर 25 बीच में स्टार्ट कर दी जब कोविड नहीं था, और देन फिर रणजी हमारी टीम। तो हर स्टेज पे, और उसमें लीग्स होती हैं। हमारी दिल्ली में दिल्ली क्रिकेट की लीग होगी, इन सब की लीग होती है। उसके बाद ऊपर जाते हैं आप, ऊपर फिर जैसे अलग अलग ट्रॉफीज़ हैं हमारी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे, कोच विहार, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग ट्रॉफीज़ का नाम दिया हुआ है। उसमें पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग स्टेट, तो बहुत चांसेस हैं और बड़ा प्रमोशन किया जा रहा है। पहली बार बीसीसीआई ने फिजिकली चैलेंज के लिए कमेटी बनाई है, वो जयशाह जी के नेतृत्व से बनी है। तो जयशाह जी का विजन बहुत है, मतलब ही इज़ यंग एंड डायनेमिक ऑल्सो। व्हेन ही टेक्स अ डिसीजन, ही टेक्स अ डिसीजन। मैं आपसे आपकी परमिशन हो तो श्री संत के केस के बारे में कुछ डिस्कस करूं। आई रिमेंबर कि he was also very passionate about the cricket, and he was although acquitted by the court, I happened to meet him in Patiala House Court when his case was going on. और उसके बाद मैं केरला भी कई बार गया तो ओकेजन हुआ कभी कभी मिलने का। तो बट उनको दोबारा एक्विटल के बाद भी वापस नहीं लिया गया। दैट वाज हिज ग्रीवेंस। व्हाट इज योर परसेप्शन ऑन दैट? सर वो सिलेक्टर्स का काम है, अकेला बैन ही नहीं होता, बैन के अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी एज कितनी हो गई है, आपके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, आपको दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट में गए हो, आपका वहाँ क्या परफॉर्मेंस रही है, उसी की बेस पे तो वापस आओगे ना। 4 साल आप ख़त्म करने के बाद वापस आओगे तो परफॉर्मेंस कैसी थी। ग्रीवेंसेस तो जो टीम में नहीं होता उसको सबको होते हैं सर। ग्रीवेंसेस तो जो नहीं दिया जाएगा वो कहेगा मैं तो सबसे बढ़िया प्लेयर। अच्छा, तो क्रिकेटर्स को कितना प्रेशर रहता है वाइल ऑन द फील्ड? बिकॉज क्या उनकी एक परफॉर्मेंस में ही इज एट अ स्टेक ऑफ बीइंग एलिमिनेटेड नेक्स्ट टाइम? सर कसौटी पे रहना पड़ता है हमेशा, और कितना बड़ा प्लेयर हो उसको कंटिन्यूस अपने फिटनेस लेवल, अपने क्रिकेट का लेवल बढ़ा के रखना पड़ता है, वरना कोई सीट किसी की पक्की नहीं है, कोई ग्रांटेड नहीं ले सकता। अब वो टाइम आ गया है कि यंगस्टर्स प्रेशर लेते ही नहीं है। आप रिंकू सिंह को देखो ना,
5 बॉल में 5 छक्के चाहिए, उसने 5 छक्के मार दिए। तो प्रेशर, इनकी डिक्शनरी में प्रेशर है ही नहीं। ईशान किशन, रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, इनका प्रेशर इनकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। दे डोंट टेक प्रेशर एट ऑल। I remember there is something called sigma technology. उसमें क्या है कि जीरो लेवल का एरर इज ओनली परमिसिबल, जीरो लेवल का। इट्स लाइक दिस व्हेन योर प्लेन इज फ्लाइंग, तो जितनी बार वो फ्लाई करेगा उतनी बार ही उसका लैंड होना वाला कंपलसरी है। पायलट कैन नॉट से कि जी मेरा इतना परसेंट एरर हो गया, 100 में से एक फ्लाइट मैंने गलत उतार दी तो मतलब आई मे बी एक्सक्यूज। सो मे बी दैट इज द प्रेशर विच इज ऑलवेज देयर, और वो प्रेशर मैंडेटरी ही होता है क्योंकि वो क्रिकेट या जो भी गेम खेल रहे हो, यू आर देयर फॉर द नेशन एंड देयर आर ऑलवेज गुड पीपल ऑलवेज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। बिल्कुल सर, देखो 140 करोड़ लोगों की दुआएं हैं, आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं आपसे। आप विराट कोहली को देखिए, जब जब प्रेशर आता है उसका गेम निखर के आता है। चेज मास्टर इसलिए कहते हैं कि उसकी 22 सेंचुरी 23 सेंचुरियाँ चेज करते हुए बनी है, 36 हाफ सेंचुरी बना चुका है। इसका मतलब जब प्रेशर आता है तो वो एंजॉय करता है। He doesn't take pressure, he give pressures to other people. Very recently there are some dissenting views also have been expressed against BCCI. On what account all this? किस बारे में सर? जैसे आपने बताया कि केसेस आपस में हो रहे थे या मे बी सिलेक्शंस, मैंने न्यूज़पेपर्स में कहीं वेगली पढ़ा था कि देयर आर सम क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड बाय फ्यू क्रिकेटर्स BCCI में। हाँ। वो सर इसलिए था कि फ्यू क्रिकेटर्स को इनवाइट नहीं गया था। तो कहते हैं मुझे इनवाइट नहीं मिला, हमें इनवाइट करना चाहिए था। हम अब हर एक आदमी का अपना सोच है, अपना तरीका, अपना कहने का अंदाज है। इतना बढ़िया वर्ल्ड कप हुआ है, इतना अच्छे टिकटिंग सिस्टम रहा है। जो लोग कह रहे थे कि स्टेडियम खाली मिलेंगे, उनको स्टेडियम, मतलब दिल्ली में तो बहुत अच्छे मैच भी नहीं थे। इंडिया गए कि मैच था इंडिया अफगानिस्तान, चलो उसमें हम कहते हैं कि दिल्ली की जो पब्लिक है वो क्रेजी आ गई थी, लेकिन बाकी के जो 4 मैचेस थे उसमें इंडिया पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था। उसके बावजूद भी 70-80% स्टेडियम फुल थे। तो वो एक जो मिथ बनाया हुआ था कि खाली रहेंगे स्टेडियम, वो फेल हो गया। चेन्नई, इंडिया, बेंगलोर, अहमदाबाद सब जगह फुल थे। दूसरा क्या था कि टिकट नहीं मिल रही जी हमें। तो 1 लाख की कैपेसिटी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, 140 करोड़ पब्लिक है हमारी, हर आदमी देखना चाहता है, सारे VIP बैठे हैं इस देश में। अब सब तो नहीं देख सकते ना, जो नहीं देखेगा वो गालियाँ देगा। टिकट नहीं मिली जी, अरे आम आदमी भी वहाँ दिखाई दिया हमें स्टेडियम में। सब्जी वाला भी था मेरा, वो भी देख रहा था, जो सब्जी मेरा लेके फाइनल देख रहा था। उन्होंने मेरे को बताया, बोला सर मैं आपको देखा ऊपर थे आप। तो सबको टिकटें मिली हैं, ऑनलाइन टिकट से सब कुछ। लोग तो यहाँ से फॉलो करके जाते हैं, लंदन में मैच हो रहा तो दे ट्रैवल अलोंग विद द टीम। मैं तो ऐसे भी आई नो, आप भी ऐसे करते हैं। और देखिए पहली बार ऐसा वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें पानी बिल्कुल फ्री मिला है, मिनरल वाटर सबको फ्री दिया गया है। पहला ऐसा टूर्नामेंट था जिसमें स्मार्ट वाटर, हाँ स्मार्ट वाटर। आई मस्ट टेल यू दैट स्मार्ट वाटर का जो ब्रांडिंग और उसका मार्केटिंग, माय सन इज इन दैट कंपनी, ही इज लुकिंग आफ्टर दैट ब्रांड ओनली। दैट वाज प्रोवाइडेड फ्री, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, अब खाना जो था वो कहा गया था कि कम से कम रेट में अच्छी से अच्छी क्वालिटी देनी है। सारे स्टेडियम्स को, सारे स्टेट एसोसिएशन को ये डायरेक्शंस थी। उसके बाद साइनेज सिस्टम इतना बढ़िया था, आपके पास टिकट, आपको पूछने की जरूरत नहीं, सब साइन लगे, आपको कहाँ जाना, कहाँ पहुँचना, आप अपनी सीट पर नंबरिंग थे, कोई हबड़ तबड़ नहीं। अब कोई शोर मचाए जाके तो फिर क्या कर सकते हैं सर। जो पाकिस्तानी टीम यहाँ शोर मचा रही थी कि जी हमें वो नहीं मिला, वो बिरयानी खा के गए हैदराबादी मजे से एंजॉय करके, वो ऑस्ट्रेलिया में अपने बैग खुद उठा के रख रहे हैं ट्रक में, वहाँ उनको कोई भी नहीं मिला। वहाँ शिकायत नहीं करेंगे, यहाँ शिकायत करेंगे। तो सर वो चीयर गर्ल्स क्यों हटा दिया आपने? कौन सी चेयर गर्ल्स? हर चौके पे, छिक्के पे, हर बॉल पे IPL में होती है, तो कब में नहीं होती। तो उसका ऐसा कुछ रेप्लिका यहाँ नहीं करते आप? नहीं नहीं, पीपल एंजॉय दैट आल्सो। नहीं, बड़े अच्छे और प्रोग्राम्स थे, बड़े अच्छे प्रोग्राम थे। बीच में जब भी हुआ उसका ब्रेक हुआ था, ब्रेक में फाइनल्स में भी, सेमीफाइनल्स में, तो बड़े अच्छे। हाँ, यस। लाइटिंग दिल्ली में बहुत अच्छी लाइटिंग सिस्टम थे। तो मेमोरेबल कोई अपना इंसिडेंट बताओ जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, जो आप याद, ऑटोमेटिक याद हो, कोई समथिंग व्हिच यू रिमेंबर। मैं तो यादों का पिटारा भरा हुआ है सर। तो सर किस तो बताओ हमारे व्यूअर्स के लिए। किस बारे में? क्रिकेट के बारे में? हाँ, यस, समथिंग रिलेटेड टू दिस स्पोर्ट्स। सर बहुत यादें हैं, मतलब सबसे, अगर मेरा मैच अनुष्का और विराट कोहली के बारे में कुछ बताएं। नहीं, बहुत अच्छा कपल है। लोग सोचते हैं कि वो रिजर्व रहते हैं, वो एगोइस्टिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों बहुत ही सिंपल हैं, पर्दे के पीछे बहुत ही ज़्यादा चैरिटी करते हैं, और एज ए ह्यूमन बीइंग दे आर फैंटास्टिक।
हाँ, दे टेक देयर ओन स्वीट टाइम टू ओपन है, वो हर एक का अपना तरीका होता है। आप भी पहले बहुत कम बोलते थे, याद है कि सीरियस रहते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलते थे। तो बहुत अच्छा कपल है और बहुत डेडिकेटेड है एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग। वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं दोनों, बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ। सर मैं याद करता हूँ, मैं केरला में था ताज होटल में, तो वहाँ पर क्रिकेट टीम दोनों रुकी हुई थी एंड आई वाज आल्सो देयर। तो मैंने तो देखा वो बेशक वेस्ट इंडीज़ की टीम थी, तो दे वर नॉट इवन टॉकिंग टू ईच अदर, खाना भी ले रहे हैं तो चुप, और इधर से विराट कोहली और हमारे और दूसरे सारे ये भी लोग थे। तो हमारी टीम वाले तो शायद भी आपस में फिर भी बात कर रहे थे, बट इंटरमिक्सिंग ऑफ द टीम मेंबर उनका नहीं था, जैसे एंड दे वर नॉट वेरी ओपन अप दैट वे। तो क्या ऐसा होता है या आपस में फ्रेंड्स या एनिमिकल फीलिंग रहती है दूसरी टीम नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत अच्छे, देखो अब तो पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपने देखा होगा उनका बाबर आजम विराट से साइन करा रहा था अपनी टीम, और उसके बाद आपस में डिस्कस भी करते हैं, एक दूसरे को प्रेज भी करते हैं और बॉन्डिंग्स बड़ी अच्छी हैं। वो टाइम नहीं है अब जैसा पुराना टाइम होता था कि लड़ाई स्लेजिंग हो रही है। हाँ, कई कई स्लेजिंग ऑस्ट्रेलियन टीम कर लेती है अभी भी, जैसे ऐसे बाउंस कर रहे हैं, किसी को इंजरी हो विद दैट इंटेंशन, नॉट ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है सर। और बड़ी अच्छी बॉन्डिंग्स है। इंडियन टीम की बॉन्डिंग्स तो ड्रेसिंग रूम में बहुत अच्छी है, परिवार की तरह है। पूरा सपोर्ट स्टाफ भी बड़ा, उनको भी बड़ा रिस्पेक्ट से बात करते हैं सब, भैया भैया कह के सबको बड़े अच्छे से, दया भैया, रघु भैया। तो बड़ी अच्छी बॉन्डिंग्स है, ऐसा नहीं है कि नहीं बात करते, आपस में घूमने भी जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं। हाँ, ये है कि 3-4 का ग्रुप, किसी का अपना ज़्यादा एक दूसरे से लाइक नेचुरली वो तो खैर हो ही जाता है, बस पर्सनल बॉन्डिंग तो होती ही है। चलिए फ्यू क्वेश्चंस, व्हाट इज योर फेवरेट आईपीएल टीम? आरसीबी। ओके, एंड से सम वर्ड अबाउट अरुण जेटली जी। पूरी किताब लिखते हैं वो भी कम रहेगी उनके लिए। तो इंटेलिजेंट, जीनियस, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, गुड पॉलिटिशियन। उधर कैमरा है भैया। आपके लिए चाय लेके आया हूँ। और ग्रेट ह्यूमन बीइंग। उनका जो एक था, मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि उनका स्टाफ हो, ये जो उनके साथ लोग लगे, सबको उन्होंने ऊपर पहुंचा दिया बिल्कुल। सबके बच्चे, मतलब उनके जो ड्राइवर हैं वो जो उनके बच्चे पुत्र, कोई इंग्लैंड पढ़ रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड में गया है, कोई कहीं वहाँ स्टैनफोर्ड में गया, कोई बर्कले में पढ़ा हुआ है, सब ने इंजीनियरिंग किए, डॉक्टर्स किए। तो वो अपने सारे स्टाफ को अपने परिवार की तरह लेकर आगे चलते थे, बड़े काइंड हार्टेड थे। और बहुत अनफॉर्चुनेट रहा देश के लिए, बीजेपी के लिए नहीं, देश के लिए, कि एक इतना विद्वान आदमी इतनी कम उम्र में चला गया। रोहन जेटली जी। रोहन, बट ही मेक्स इट अ पॉइंट कि नहीं, लेट्स ब्रिंग इट टू अ कंक्लूजन। वो है, अच्छा है, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल फॉर क्रिकेट। आई थिंक एग्रेशन ऑफ विराट कोहली, दैट इज पैशन, दैट इज क्वालिटी, दैट इज स्ट्रेंथ, एंड आई लव दैट एग्रेशन। इतने साल तक कंटिन्यूअस एग्रेशन को मेंटेन रखना, अपनी टीम को जिताने के लिए जी जान लगा के रखना, और टीम के सेलिब्रेशन करना हर विकेट पे, बहुत मुश्किल काम है। अनुष्का शर्मा, बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, लोग कहते नहीं है क्योंकि उसको अभी भी विराट कोहली को वो सचिन की या सहवाग की शेडो के अंदर देखते तो बच्चा ही लगता है उनको, जबकि 35 ना हो। इससे बड़ा प्लेयर ओडीआई में कोई पैदा नहीं हो, ना ब्रायन लारा, ना वीरेंद्र सहवाग, ना सचिन तेंदुलकर, ना कोई भी गिरनीज, कोई नहीं, इससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं हुआ। और मुझे, मेरी सोच में बहुत बड़ा प्लेयर है। मैं अनुष्का शर्मा जी के बारे में, गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी काइंड हार्टेड, कम बोलती हैं अपना, ग्रेट मदर एंड फैंटास्टिक वाइफ। MS धोनी साहब, थोरो जेंटलमैन, डाउन टू अर्थ, बोथ कपल। उनकी वाइफ भी ऐसी है, और घमंड और जो गुरूर है वो छुआ भी नहीं उसे, जो और प्लेयर्स में किसी में नहीं दिखेगा। दुनिया किसी प्लेयर में इतनी ख्याति के बाद इतना डाउन टू अर्थ होना है। सम वर्ड अबाउट शाहरुख खान, ग्रेट एक्टर। कपिल देव, वाज गुड लीडर। एंड मिथाली राज। मैथाली को उसके ड्यूज मिले नहीं। मैथाली वही है जो सचिन तेंदुलकर है विमेन क्रिकेट के लिए। और मैं एक फंक्शन पे गया था तो मैंने सबसे यही कहा था कि जिस हिसाब से सचिन और सहवाग को आप याद करते हो, ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ते हो, ऐसे ही मिथाली के पास दौड़ना चाहिए आपको। इतनी बड़ी प्लेयर, बहुत बड़ी प्लेयर है, 22 साल तक कंटिन्यूस खेलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और
मैं उनको बहुत ऊपर रखता हूँ, बहुत ऊपर। कमेंटेटर कोई जो आपका फेवरेट हो? रवि चतुर्वेदी होते थे, बहुत अच्छे। जसपाल सिंह जी होते थे। Yes. हमें हॉकी से लेके, क्रिकेट से लेके और रिपब्लिक डे परेड तक सब कुछ सुनाते थे, बड़े अच्छे लगते थे। आज का जो सबसे मतलब फेवरेट है मेरा, आशीष नेहरा। इज गुड। वीरेंद्र सहवाग तो बट ऑब्वियस है, मुझे अच्छा लगता है वो। आप दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी करा रहे हैं और क्या उसका कंट्रीब्यूशन रहता है आपका? देखो, इसमें पूरी हमारी एग्जीक्यूटिव कंट्रीब्यूशन रहता है। और हमने बैडमिंटन टूर्नामेंट कराया, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया लोगों ने। फुटसाल कराया था, फुटबॉल का जो छोटा रूप होता है फुटसाल किया, वो अच्छा रहा। मैराथन कराई थी, वाज वेरी सक्सेसफुल। 5000 के करीब लोग थे उस टाइम, उस दिन भी। अब क्रिकेट का टूर्नामेंट होने वाला है, क्रिकेट टूर्नामेंट कराएंगे, विमेन और मैन दोनों का। उसके बाद मतलब एक बिजी रखेंगे सारे लॉयर्स को। जो एक स्ट्रेस रहती है ना, जो इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, उससे रिलीव हो जाते हैं। वो तो एक फिटनेस भी लेवल आता है, अवेयरनेस आती है। तो हम कोशिश करेंगे कि टूर्नामेंट का लेवल एक बहुत अच्छे लेवल लेके जाएं। और कि हमारा एनुअल जो क्रिकेट का जजेस का और लॉयर्स का मैच होता है ताराचंद माथुर में, काफ़ी टाइम से हुआ नहीं है, उसको जरूर कराएंगे बड़े अच्छे लेवल पे। और मेरी सोच ये है कि उसको हम फिरोज शाह कोटला जो हमारा ग्राउंड है अरुण जेटली स्टेडियम में, उसमें कराएं और सारे लॉयर्स अपनी फैमिलीज के साथ वहाँ आएँ और एक ऐसा एटमोसफेयर हो जैसा IPL का होता है। तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ग्रुप रेखा बना रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स के और जब दिल्ली हाई कोर्ट के भी मैचेस वहाँ पे होते ही हैं, पहले भी हुए ही हैं। मैचेस होते हैं लेकिन लोग 200 होते हैं। हाँ, दैट इज करेक्ट। तो उस 200 को मैंने मोर पार्टिसिपेशन 10,000 बनाने की कोशिश करनी है कि इस बार स्टेडियम फुल दिखाई दे, आप अपनी फैमिली के साथ आओ, एंजॉय करने आओ, जैसे IPL देखने आते हो वैसे आओ। और अपनी वाइफ निशी के बारे में बताओ। शी इज अ गुड आर्टिस्ट। गुड आर्टिस्ट और अच्छे आर्टिस्ट हैं। यू हैव ए वेरी गुड पार्टनर। हाँ, मैंने good शुरू से partner। देखा है। देखिए शायद हम आपको जानते हैं जब मैं छोटा सा लॉयर बना था सर। जब आप लॉयर भी नहीं थे, यू वर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। हाँ सर। माय वाइफ वाज आल्सो एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड एडजॉइनिंग सेम रूम में एडजॉइनिंग बेड था। एंड एट दैट टाइम आप इतने टॉकेटिव थे, तो वो क्या है कि वो टाइम जो है बड़ी आसानी से गुजर गया। आई रिमेम्बर दैट डे। और तो मेरी वाइफ अच्छी है सर, मेरी बड़ी अच्छी है। शी इज ए वेरी गुड पेंटर। और 2 बेटियां हैं, उनको बड़ी अच्छी परवरिश की है उसने। वन ऑफ माय डॉटर इज डूइंग मास्टर्स फ्रॉम इंग्लैंड, अदर वन इज फर्स्ट ईयर नाउ, कोई कोहेन। तो घर उसके पे अच्छा हाथ में चल कुछ रहा है। इंजरी हो गई थी पहले, क्या हाँ, अब ठीक है? तो वो ठीक है, मतलब बच्चों का बड़ा अच्छा ध्यान रखती है, फैमिलीज को बांध के रखती है। मेरे फादर बेड पे 8 साल से, उसके चेहरे पे शिकन नहीं आती, पूरी सेवा करती है। मतलब परफेक्ट वाइफ। अच्छा आपके मदर के टाइम पे शायद हम उनसे मिले थे। हाँ सर, है ना? कैंसर हो गया था जब। हाँ। चलिए, आपसे मिलकर के और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। प्लेजर फॉर मी सर। And I hope that you will be giving your own contribution to the cricket and to the sports and your vision, and may you prosper further also and have so that you may shoulder good responsibility here. We feel very proud of you because of your achievements. It is really hats off to you on that. Thank And I wish you all the Contribution of best. all of you, friends and seniors, their blessings. Thank you so much. Namaskar.